Hello everyone, I am Dr. Uda. Welcome to this new lesson. Last time we had studied the properties of GCD. So today we will study about the coprime numbers. So before I jump to the coprime, let us first of all study about the prime number. As far as Z is concerned, integers is concerned, so we can extend this definition. So a number A belonging to Z is called prime if its divisors are only plus minus 1 and plus minus A. So this is called a prime number. So early in natural numbers, number of divisors of a prime number were 2. Here number of divisors are 4, and any integer having more than 4 divisors is called composite number. One is neither prime nor composite. Number of divisors, if I come to the positive part, mainly in the majority of cases we would deal with the positive ones as in the earlier cases. So if we are having positive integer, the number 1 is neither prime nor composite. So prime number, how many divisors? 2 divisors. A number which is having 2 divisors, the number divisible by itself and by 1. Composite is more than equal to 3 divisors. तो ये हो गए more than equal to 3 divisors. And number 1 is has only 1 divisor. So it is a special case. So now we come to the co-prime numbers. So let me import the definition here. So this is the definition of co-prime numbers, or we can call it as relatively prime. This is relatively prime, or we can call it as co-prime. Okay. So these are the ones who are having GCD equal to 1. Many examples you can see, like the one, suppose I am having A as minus 3, B as 2, then you can check that their GCD would turn out to be 1, and hence we call them as co-prime numbers. For co-primes, there is another important result which we frequently use in the later part of the course, where the GCD would be 1, then we would utilize this result there. This one is the result. This result is quite important and it would be utilized very frequently. So A and B are integers, not both 0, from the definition of GCD itself. They are relatively prime if and only if. So the condition is if and only if. So one way, if and only if there exists xy such that this is equal to 1. One way is clear from the earlier result which we have seen. What was that? That if D is the GCD, what we had studied, then D can be written as AX
plus by for some xy. Here they are relatively prime, so GCD is 1, so implies 1 is equal to ax plus by. So one way is quite clear. Now conversely, that means what is given to me, that 1 is equal to ax plus by. Now we have to show that its GCD is 1. So now let D is the GCD. Let D is equal to GCD of A and B. So what we get, D divides A and D divides B. Again I utilize one property of divisibility. I show you once more. इसलिए मैंने कहा था कि इसको काफ़ी हम जो है इस्तेमाल करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी. देखिए जी लास्ट वाली जी पार्ट, इसलिए मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था बहुत आगे बहुत बार इस्तेमाल आएगी. सिमिलरली अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो GCDs की ये एक्सप्रेशन है ax प्लस बी वाई, और जो रिलेटिवली प्राइम है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, जो ये रिजल्ट है, ये भी ऐसे ही बार बार आगे जो है रिपीटेडली यूज़ में आएंगे. तो अभी उस रिजल्ट का मैं इस्तेमाल करता हूँ. सो इम्प्लाइज D divides ax plus by for any xy. There is no, it is not, definition is not कि for some xy, ऐसा नहीं है. कोई भी xy ले लें उसके लिए ही D जो है उसको डिवाइड करेगा. तो some xy के लिए ये 1 भी है ये वैल्यू, तो इम्प्लाइज D would divide 1, क्योंकि for some xy this ax plus by is equal to 1, तो ये इस 1 को भी डिवाइड करेगा. तो पॉसिबिलिटी क्या है कि D जो है या तो +1 होगा या -1 होगा. बट GCD की डेफिनेशन क्या कहती है कि GCD मस्ट बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब ओनली चॉइस लेफ्ट विद मी इज D इज इक्वल टू 1. तो ये जो है हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है. अब इसके बाद आते हैं हम कोरोलरी नंबर 1. कोरोलरी नंबर 1 बेसिकली इसकी कोरोलरी है वो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ में लिस्ट किया था, जो मैंने कहा था कि शायद अगली बार हम इसको करेंगे. ये वाली जो ये 5वें पार्ट पे लिखी हुई है, जो प्रॉपर्टी ऑफ GCD थी, मैंने कहा था कि रिलेटिवली प्राइम के बाद हम इसको शायद सॉल्व करेंगे. तो लेट अस सी, आज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो जो है ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. तो ये इसकी कोरोलरी नंबर 1 है. तो इफ GCD ऑफ A and B is equal to D, then GCD of A by D and B by D is equal to 1. तो इसी की कोरोलरी है का मतलब इसका ही इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है. तो अब देखिए अगेन फिर हम वो कौन से वाली रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने अभी कहा था कि GCD का बहुत बार हम जो है रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे. प्रॉपर्टीज से पहले ये रिजल्ट है, कौन से वाला, ये वाला थ्योरम 2.3, कि अगर GCD है तो वो दैट कैन बी रिटन एज ax प्लस बी वाई. यही रिजल्ट अब हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. तो ये आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आता जाएगा रिजल्ट जो. तो अभी ये D जो है GCD है, तो इट कैन बी रिटन एज ax प्लस बी वाई फॉर सम xy. फॉर ऑल नहीं है ये फॉर सम xy. ऐसे xy एग्जिस्ट करेंगे जो D के बराबर हमें रिजल्ट यील्ड करेंगे. तो ये हमारा हो गया ये. तो अब हम D से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं. तो ये आ गया हमारा 1 इज इक्वल टू A बाई डी एक्स B बाई डी वाई. यहाँ पे दिखने में ऐसा लग सकता है कि A बाई डी एक फ्रैक्शन है, B बाई डी एक फ्रैक्शन है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि D जो है वो GCD है. तो D डिवाइड्स A और D डिवाइड्स B. तो जब उनको डिवाइड कर रहा है तो A बाई डी एंड B बाई डी वुड नॉट बी फ्रैक्शंस. तो ये हमारे पास आ गया. अब कोरोलरी इसलिए कि अब हम ये रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे. अब ऊपर से देखते हैं क्या कहता है जी रिजल्ट, ये अंडरलाइन कर देते हैं.
ये देखिए कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 है फॉर सम एक्स वाई, तो क्या होगा, जीसीडी ऑफ ए और बी जो है वो 1 होगा। तो ये यहाँ पे अब हम इसको ले लेते हैं। तो अब देखिए ए बाई डी और बी बाई डी के रिस्पेक्ट में ऐसे एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1। सो हेंस फ्रॉम हियर we say that GCD of A by D and B by D is equal to 1 which was to be proved। इसलिए इसकी कोरोलरी है क्योंकि उसको इस्तेमाल करना हमने। एक और कोरोलरी है इसकी, कोरोलरी नंबर 2, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ये वाली नेक्स्ट पेज पे ले लिया हमने। If A divides C, B divides C, then GCD and with GCD of AB equal to 1, then AB divides C। ये आप खुद ट्राई कर सकते हो इफ़ यू विश टू। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो आप इसको ट्राई कर लेना। और इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन रेफर बुक एज वेल। बहुत छोटा सा रिजल्ट है, कोई ज़्यादा नहीं। सो यू ट्राई इट एट योर ओन, सो आई एम लीविंग इट फॉर यू। तो इसके बाद जो है हमारे पास आता है यूक्लिड्स लेमा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम पहले भी स्कूल लेवल पे कर चुके हैं। ये है जी हमारे पास यूक्लिड्स लेमा। इसका प्रूफ भी देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और काफ़ी बाद में भी यूज़ में आएगा। तो यूक्लिड्स लेमा है क्या कि अगर A डिवाइड्स बी सी विद जी सी डी ऑफ A एंड B इक्वल टू 1 देन A डिवाइड्स C। ये हमारे पास है। लेट अस सी इट्स प्रूफ। तो अब जो है जी सी डी ए और बी का क्या है, 1 है। तो अभी अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा कि अगर दोनों को प्राइम है तो देन देयर एग्जिस्ट ए x and y such that ax plus by। So invoking that result we get that ax plus by would turn out to be equal to 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड जो है c मल्टीप्लाई कर देंगे। एज देखिए ये इक्वेशन में कैसे ले पाया, जरूरी तो नहीं कि इक्वेशन आए, ये इक्वेशन इसलिए ले पाया क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा कि अगर ऐसा रिलेटिवली प्राइम है तो हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस वजह से मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ। अब दोनों साइड c मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए a डिवाइड्स ए सी, पहले वाले पार्ट को डिवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर a ऑलरेडी प्रेजेंट है, और a डिवाइड्स बी सी, क्यों, क्योंकि गिवन है, लिखा हुआ है a डिवाइड्स बी सी। तो ये गिवन है तो इम्प्लाइज a डिवाइड्स ए सी एक्स प्लस बी सी वाई। ये कौन से वाला रिजल्ट है जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली अभी 2-3 बार इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन ये किसके बराबर है, c के बराबर है। इम्प्लाइज a डिवाइड c एंड हेंस द रिजल्ट। इसी से रिलेटेड एक हम लोअर क्लास स्कूल लेवल में जो है बहुत इस्तेमाल करते आए, तो वो और रिजल्ट कर देता हूँ। यू कैन कॉल इट दैट एज इट्स कोरोलरी। ठीक है, तो क्या रिजल्ट था वो, हम बहुत फ्रीक्वेंटली स्कूल लेवल पे उसको इस्तेमाल किया है कि इफ़ P डिवाइड्स ए बी implies either P divides A or P divides B where P is a prime number। ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया। तो ये इसी यूक्लिड्स लेमा से ही आता है हमारा कि अगर मान लो
मान लिया या तो वो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा, जो है हो सकता है दोनों को भी करे, जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव और नहीं है, मान लिया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर एक को नहीं करेगा तो कंपल्शन है कि दूसरे को करे ही करे। तो लेट P डज नॉट डिवाइड ए को नहीं डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, GCD ऑफ P एंड A इज इक्वल टू 1। तो सेम तरीके से जैसे अभी हमने ऊपर किया है, उसी तरीके जैसे वहाँ पे GCD 1 था तो यहाँ पे भी हम GCD 1 आ गया है। मान लो चलो इसको करें तो क्या हो गया, Px Ay इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज B मुझे शो करना है, तो PB x प्लस ABY इज इक्वल टू B। नाउ P डिवाइड्स PB बिकॉज P तो इसके अंदर है ही, एंड P डिवाइड्स AB, ये गिवन है, implies P divides PBX प्लस ABY, और ये किसके बराबर है, B के बराबर है, implies P divides B। तो ये वो रिजल्ट है जो हम काफ़ी इस्तेमाल करते आए स्कूल लेवल पे। सो यहाँ तक हमारा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पार्ट हमने कई क्लासेस में लगातार जो है ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट करते आ रहे हैं। क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं लिए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट यहाँ तक हमारा पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इन कंसेप्ट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।